process which we have completed till then would have gone into ruin. And she came all the way, she accredited our college. We got A grade that time. And then in the third cycle, after 5 years, we got A plus grade. Oh. So from B plus to A plus, we kept on going high. Ours is a place in a very small town. It's not even a district place, not even a tehsil place. It's smaller than that. But we have a college in which children from different villages, mainly villages, they do come to our college. We have 8,000 plus strength now. That time when Dr. Jain visited our college, that time it was somewhere around 3,500, but now it is 8,000. So Wow. if we are consistently traveling towards excellence, and she knows everything. I don't know why she has called me here. She know all the processes. She know. In fact, I used to call her all the time, and I used to ask her that, ma'am, what to do in this regard. But this is my honor that she called me to your college. I understood from her talk that she has taken up a challenge, and so she is here in this college, a very a beginner college, just started, a very small organization till now, very few courses and few teachers as well. Because I have visited her Meerut college as well. It was a huge college and a beautiful college I have seen. But now she's in your college and she knows everything, and still just maybe because the kind of relation we shared in that NAC accreditation, she would have called me here. While working in our college, we have a lot of challenges. The first ever challenge which we had was obviously finance, because that is a government college, a government aided college. That time there were no additional courses as such, and the income source was limited. Then government has got policies that they don't appoint teachers in time, so we have to appoint our own teachers, for which we don't used to get grants. We don't even used to get qualified teachers as such. So those who are PhDs and those who have done NET and SET, that was a big challenge. What we have done is something amazing, because ultimately we have to find out our own resources, that how we are going to build this. Our college has got one good thing, that is it is spreaded over 50 acres of land. It's a huge college. I mean, land is huge. So a lot of barren land was available there. What we have done is, but no water, absolutely no water. We have tried very hard to get some water there, and more than that, we have started water conservation, and we have created 2 big ponds where 50 lakh liter water can be generated. Now, since we had water, we started farming in the college, because we have students from rural background. So we started farming there, and that is a barren land. Ultimately, when we started farming, you won't believe, here in this area, we never see peacocks. But now we have 45 peacocks in our college. That is something really amazing. And we give work to the poor students, and they work there, they get some amount of out of it, which is a scheme by our university. Earn and Learn. The name of that scheme is Earn and Learn. So we have given job to the students, the farming job. They started farming there. लेकिन वो जो भी बनाते थे वो मोर चुग जाते थे, कुछ नहीं बचता था हमारे लिए. तो हमने ये स्लोगन दे दिया, मराठी में हम कहते थे, जानबूझ के मैं मराठी में कह रहा हूं क्योंकि राइमिंग था. तो काम पोरांना, पोरा मीन्स बच्चे, काम पोरांना आणि दाना मोरांना. तो दाना जो निकलता था वो मोर खा जाते थे और काम बच्चों को मिलता था. Anyway, लेकिन बच्चों को फीस भरने के लिए पैसे तो मिले. फिर हम लोगों ने वहां पे बहुत अच्छी कैंटीन फैसिलिटी खड़ी की, जिसमें बहुत सस्ते में हम लोगों ने बच्चों को चीजें देना शुरू किया, और उसमें से हम लोगों को कुछ पैसा मिलने लग गया. हम लोगों ने श्रेडिंग मशीन्स लगाए. श्रेडिंग मशीन इसलिए लगाए क्योंकि हमारे पास इतने सारे आंसर पेपर्स और जर्नल्स और वो सब चीजें थी कि उसको श्रेडिंग मशीन में लगाकर
हम लोग श्रेडिंग करना शुरू कर दिए। हमारे यहाँ इस इलाके में दाड़िम जो अनार होता है, वो अनार बहुत बिकता है, द पोमोग्रेनेट, और उसके पैकिंग में वो श्रेडेड पेपर लगता है। तो हमने वो देखा कि भाई यहाँ श्रेडिंग पेपर की जरूरत है, तो हमने श्रेडिंग चालू किया, और 9 रुपए में जो रद्दी हम बेच देते थे, वी स्टार्टेड सेलिंग दैट श्रेडेड पेपर्स in 16 rupees per kg. So we started getting 7 rupees profit per kg in that shredding material. And these are the small things which we started. We invited people around the area and we have given them one identity card in 10 rupees. In 10 rupees, we have given them identity cards and we called them that, come on, come to our college, have around there. We have started with an Oxygen Club. Oxygen Club is the name of that program, and we have appointed some students from our college itself, those who are into yoga and pranayam. We have started our Surya Namaskar Club, we have started our yoga club, and we have started our pranayam club as well. More than that, we have started one naturopathy club also in that program, where different kind of juices are served to the people, those who come there for morning walk. And from that, we started earning money and we generated our own funds. You won't believe, I have called all my alumni, because it's a very old college and we are working since 1961. So our alumni is huge, and we called them on different occasions and we asked them for the help. You won't believe that in last 2.5 years, I have generated more than 5 crore rupees from this alumni for different projects. Ma'am, this is one thing which you have not seen, because you have visited our college some 9 years back. 9 years. 9 साल हो गए, अगले साल हम नैक वापस करेंगे, 4th राउंड। जब तक हम 4th राउंड में जाएंगे, हम एटोनॉमस रहेंगे। हमने एटोनॉमी का एप्लीकेशन कर दिया है, ये कोविड की वजह से गया। Congrats. We are going to be autonomous in a place like Sangamner, which is not even a tehsil place in the Gulewadi. We are running one college which is going to be autonomous. We are the best college in Pune University region now. We got it, that prize is given once in 10 years. But in last 10 years, we got that prize twice, that we are the best. So in last 10 years, we again could not apply. You have to apply only after 10 years. So consistently in two cycles, we are the best. That means we are best forever. And what is the key behind this? What made us to get this kind of accreditation grade and this kind of award that we are the best in Pune University region? You need to know about it. We love our students like anything. That is the first thing. Ma'am have met our students and they speak very high for all of us, because all my students, they know very well that anytime I'm available for them. Even if they have some other problem than academics, then even they can contact me. Even in their bad times, we are with them. And what was that process? What made this happen? I'm going to explain this to you. The first very important thing is, I would like to show you something very interesting which my students taught me, because we also run one school here which is named as Dhruv Global School. Dhruv Global. Yeah, some students of my Dhruv Global School, I generally go and interact with them. One 5th standard batch I was interacting with, and they told me that, sir, I have one of the child, he came in front and he told me that, sir, I have a question today, that if you want to keep this candle burning, what exactly you need to, what are the things you need? So now, why it has blown up? The reason is, it was in front of my mouth and air was coming out, so it blew up. So he asked me that what are the different things which we require to keep this candle burning. We started telling answers that wax is required, then the thread is required, oxygen is required, there should be no air, so I have switched off my fan, and so many things we went on telling. Hand is required, eyes are required, मन में इच्छा होनी चाहिए, सब बोल के हो गया. लेकिन वो बच्चा जो था वो बोल रहा था कि ना, this is not the right answer. Something very more important than this is required. Matchbox. Ultimately, we lost
we told him that now you have to tell what exactly is required. Exactly. And the child told us very interesting thing. He told us that this has to be in upward direction. The candle has to be in upward direction. The moment this candle is kept in a downward direction, what happens? It extinguishes. वो उसी के मोम से बुझती है, Hmm. उसी का मोम उस पर गिरता है और बुझ जाती है। और फिर वो बच्चा आगे जाके और एक चीज, बहुत बढ़िया चीज बोला। वो ये बोला कि देखिए सर, मेरा तो मानना ये है कि आदमी का जो खोपड़ी है ना, वो भी बिल्कुल वैसा ही होता है कैंडल के जैसा। जब तक सीधा है बढ़िया है, जैसे ही उल्टा हो गया खोपड़ी, खत्म मामला, बुझ जाएगा सब कुछ। अरे क्या बात बोल दी उस बच्चे ने, मैंने अपने दिल में रख ली वो बात। कितनी बढ़िया बात बोली। मैंने कभी गीता में नहीं पढ़ा, मैंने ज्ञानेश्वरी, महाभारत, रामायण सब पढ़ लिया, उसमें कहीं नहीं लिखा। इतनी सुंदर चीज बच्चा बोल दिया कि इस क्षण हम उल्टे हो जाते हैं, दिमाग उल्टा घूम जाता है, उस क्षण हम अपने ही मोम से बुझ जाते हैं, अपने ही विचारों से बुझ जाते हैं। नैक की तरफ देखते समय हम लोगों को मोमबत्ती सबसे पहले सीधी कर लेनी जरूरी है। हम लोग नैक को देखे तो नैक बहुत हेल्पफुल है, मैं आपको बताता हूं। नैक ग्रेड के लिए मत लेना, ग्रेड अपने आप आता रहेगा। वो भगवत गीता में बोला ही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ए ग्रेड मिलेगा, छोड़ो उसको। ए ग्रेड नहीं मिला तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं बदलने वाला। लेकिन बी ग्रेड मिला चलता है, सी ग्रेड मिला चलता है, लेकिन नैक होना जरूरी है। वो नैक इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमको सुधार देता है, वो हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, वो हमारी सिस्टम सेट करके जाता है। वो सारे 7 क्राइटेरिया, उसमें हम जब काम करना शुरू करते हैं तब हम अपने आप को ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं। और ये अपवर्ड डायरेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक केवल, मैं आपको और एक चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। ये जो सारे प्रोजेक्ट्स है ये बच्चों के ही दिए हुए हैं। ये एक यहाँ पर आपको एक आकृति में दिखा रहा हूं जिसमें कुछ स्क्वायर्स है। अब ये जो स्क्वायर्स है, ये कितने स्क्वायर्स है ये आपको बताने हैं। आप कहेंगे मैं तो इसमें 16 स्क्वायर्स देख रही हूँ, 16 स्क्वायर्स दिख रहे हैं। लेकिन जब ध्यान से देखते हैं कि इसमें स्क्वायर्स कितने हैं, तब आपको 16 के बाद में एक बड़ा सा जो साइड वाला स्क्वायर है वो भी नजर आता है, और वो है 17वां स्क्वायर। लेकिन बात यही नहीं रुकती, और भी तो स्क्वायर्स है। फिर 4 के 4 स्क्वायर्स दिखेंगे। ये 4 का एक स्क्वायर हो गया, उसके बाजू में एक हो गया, ये नीचे में एक हो गया, और ये यहां पर एक हो गया। तो ये हो गए और 4 स्क्वायर। तो 16 और 17 और 4 कितने हो गए? 22। हाँ, 22 हो गए। लेकिन बात यहां पर भी नहीं रुकती, बात और आगे बढ़ती है। बात यह है कि 4 के तो और भी है, क्योंकि ये बीच वाले जो 4 वाला है, ये बीच वाला 4 का एक, इधर वाला बीच वाला 4 का एक, ये नीचे वाला 4 का एक, और ये ऊपर वाला 4 का एक। ये चारों मिलाकर के 22 + 4 और हो जाते हैं, हो गए हमारे 26। 21 + 4 21 होते हैं, 21 + 4 25 हो गए। बीच वाला भी एक है, ये बीच वाला 4 का एक हो गया, ये हो गया 26। आप कहेंगे 16 से 26 तक पहुंच गए। लेकिन यहां भी मामला रुकता नहीं। 9 के स्क्वायर्स हम भूल गए कि 9 स्क्वायर का भी तो एक स्क्वायर बनता है। वो 9 के जब स्क्वायर्स हम ऐड करना शुरू करते हैं ना, तो और 4 स्क्वायर्स हमें नजर आने लग जाते हैं। तो ये 4 जो है 9 के 4, इस साइड में एक है, इस साइड में एक 4 9 का स्क्वायर है, फिर ऊपर के साइड में भी एक 9 का स्क्वायर है, और राइट साइड में भी एक 9 का स्क्वायर है। तो वो 4 मिल गए। तो 26 + 4 और हो गए, तो 26 + 4 हो गए, तो ये टोटल हो गए 30। हमने जिस चीज को 16 समझा था पहले, वो धीरे धीरे बढ़ते 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 30 हो गई। नैक बिल्कुल ऐसा है। हम देखने को नैक सिर्फ ए ग्रेड देखते, बी ग्रेड देखते, सी ग्रेड देखते, फॉरगेट ग्रेड से कोई लेना देना नहीं मुझे। हम लोगों ने एक बात शुरू की थी, जब हमारा स्पोर्ट टीचर मुझे मिलने आया कि सर हम क्या करें इसके लिए, तो मैंने उसको बोला कि आपका क्या अचीवमेंट है बताइए। तो मेरे स्पोर्ट टीचर ने मुझे बताया कि सर हमारा अचीवमेंट है कि हमें पिछले साल 7 मेडल्स मिले। तो मैंने कहा मुझे मेडल्स नहीं चाहिए, मुझे कितने बच्चे मैदान पे आए इसका हिसाब दिखाओ। बोले ऐसा तो हिसाब नहीं रखा हमने। मैंने कहा जब 3,500 बच्चे मेरे स्कूल में है, कॉलेज में है, तो उसमें से 7 मेडल आए, बहुत अच्छी बात है, मेडल्स का कोई मामला नहीं। मैं तो चाहता हूं कि बच्चे खेले,
तो बच्चे मैदान पे आए। तो बच्चे मैदान पे आने के लिए कोई इंतजाम है? तो उसने कहा सर ऐसा तो है नहीं, मैं तो अकेला हूं, मैं कैसे करूंगा। मैंने कहा यार अकेले कहाँ हो, आप अपनी इतनी बड़ी अलमनाई है, इतने प्लेयर्स निकले हैं इस कॉलेज से, हम उनको बुलाएंगे। और हमने बुलाए वो सारे लोग, और उन्होंने कहा कि हम आएंगे 1-1 घंटा, और वॉलंटरीली आए वो लोग, जो जो अपने अपने गेम में एक्सपर्ट थे कॉलेज टाइम में, वो सारे आए। और ऐसे 12 लोग हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए जो 1-1 घंटा देने को राजी हो गए वॉलंटरीली। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे मैदान पे आए, इतना ही हमने देखा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, Malpani sir, sorry to interrupt you. Sorry to interrupt you. We have with us our chair, Adhyaksh, president of our Jain College Management Committee, Shri Rajesh Jain ji. I would like Vandana Verma to welcome him. ओके। Vandana. वंदना मैम अनम्यूट करो अपने आप को। Yes. I welcome Mr. Rajesh Jain ji, President of our College Management Committee. Thank you, sir, for joining us. Thank you, sir. नहीं, सबको नमस्कार करता हूँ मैडम। जी 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 जितने लोग हैं सबका वेलकम करता हूँ, मालपानी sir. सर जैसे, जिनका हमें सुनने का मौका मिलेगा। जी जी हमारे जो अध्यक्ष जी हैं सर, वो भी पेपर मिल के ऑनर हैं, और काफी बड़ा ग्रुप है इनका मुजफ्फरनगर में। he is one of the wealthiest and the very active person in our area, in मुजफ्फरनगर एरिया। तो सर बहुत अच्छा रहेगा, अब इंटरेक्टिव सेशन होगा और आप बताएंगे कि कैसे क्वालिटी को एनहांस किया आपने कॉलेज में। तो आप पर वापस फिर जाते हैं हम। मैं भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। मैं भी अपने एरिया में छोटा मोटा काम करता हूं। लगभग 3,500 लोग मेरे कारखाने में काम करते हैं। 650 मेगावाट के सोलर और विंड पावर के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। हम लोगों के वाटर पार्क्स है, अम्यूजमेंट पार्क्स है, थीम पार्क्स है, पुणे में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। और 145 प्रोडक्ट्स जो कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, 145 प्रोडक्ट का रेंज हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मेरा परिवार 350 वर्कर्स का मेरा परिवार है, और उनके सारे परिवारजन, और उन सब के लिए हम लोग यहाँ पर अलग अलग जो एक्टिविटी चलाते हैं, उसमें से एक एक्टिविटी है कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस है। मैं बहुत प्यार करता हूं मेरे स्कूल और कॉलेज को। मैं हरदम ये कहता हूं कि एक मेरे हाथ की हीरे की अंगूठी है और एक मेरे गले का पेंडन है, मेरा स्कूल और मेरा कॉलेज। क्योंकि साहब भगवान ने बहुत कुछ दे दिया मुझे। मैं कुछ भी नहीं करूं, घर में बैठूं, 5 स्टार होटल में भी रह लूं, पूरी जिंदगी मेरी 7 पीढ़ियां भी रह लेगी, लेकिन जो आनंद मुझे बच्चों के साथ बात करने में मिलता है, शायद वो मुझे वो 5 स्टार होटल में कभी नहीं मिल सकता। और भगवान की कृपा है कि मैं इंडस्ट्रियल फैमिली में आ गया। यदि नहीं आता तो शायद हो सकता है कि मुझे चॉइस मिलता कि मैं क्या करूं, और यदि मुझे चॉइस मिलता तो मैं जरूर टीचर बनता, क्योंकि जितना प्यार मैं बच्चों से करता हूं शायद और किसी चीज से नहीं करता, और वो सारे बच्चे भी मुझे उतना ही प्यार लौटाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा सर, एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मुझे बहुत चोट आ गई थी, तो मुझे एयरलिफ्ट करवाया गया, मुझे बॉम्बे ले जाया गया, बहुत छोटी जगह से मुझे मेरे लिए हेलीकॉप्टर लाया गया यहाँ। और ये सब जब हुआ तब मेरे स्कूल के, मेरे कॉलेज के बच्चों ने उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया सर। सब प्रार्थना कर रहे थे अंदर से कि सर लौट के आ जाए, सर लौट के आ जाए, और वो सारी प्रार्थनाएं थी जो मैं लौट कर आ गया। जितना हम बच्चों के लिए करेंगे उतनी बड़ी प्रार्थना हमारे लिए बनती है। और ये सारा जीवन जब मैं वहां से लौट के आया तब मैंने सोच लिया कि अब जिन्होंने प्रार्थना करके मुझे बचा लिया है, मेरा तो बचा हुआ जीवन उन बच्चों के लिए है। तो मैं दिन रात उसमें लगा हुआ रहता हूं, और बच्चों की अपलिफ्टमेंट, मेरे यहाँ पे अलग अलग स्कीमें हमने की बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं। तो हमने ऐसी ऐसी स्कीमें की जिसमें हमारी अलमनाई ने हम लोगों को सपोर्ट किया। यहाँ पे एक विद्याधन कलश योजना नाम की स्कीम मैंने शुरू की थी, जिसमें शुरू में मैंने खुद ही 2 लाख रुपए डाले थे कि भाई किसी बच्चे को यदि जरूरत पड़े तो उसकी फीस भर देना। अब बढ़ते बढ़ते अलमनाई में उसमें इतना सपोर्ट डाल दिया है कि वो फंड हम लोगों का 1.25 करोड़ रुपए का हो गया। उसके ब्याज पर हम लोग हर साल 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं, और बच्चों की फीस हम भर देते हैं, और बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा जब भी तू बड़ा बन जाएगा, तेरे पास देने की जब परिस्थितियां रहेगी तब लौटा देना। तो सारे के सारे 100% बच्चे लौटाते हैं सर। एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो नहीं लौटा रहा है। आज तक का ये रिकॉर्ड है। हाँ, 1 साल का एक्सटेंशन मांगता है, लेकिन लौटाया नहीं, ऐसा किसी का नहीं होता। कल ही एक बच्चे का मैसेज आया सर कि सर इस बार तो कोविड के कारण मेरी नौकरी चली गई, अब मैं पैसा नहीं लौटा पाऊंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, अगले साल लौटा देना, जब तेरी मर्जी है लौटाना।
तेरे छोटे भाई बहनों के लिए लौटाना। ये कॉलेज को नहीं देना है, ये कॉलेज भी तेरा है और तेरे छोटे भाई बहन आने वाले हैं, उनको लौटाना। हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के ऐसे ऐसे कोष तैयार किए, क्रीड़ा कोष बनाया हम लोगों ने, जिसमें मेरे पास ऐसे बच्चे जो 21 किलोमीटर दौड़ तो लेते हैं, लेकिन इतना दौड़ने के बाद जितनी खुराक उनको मिलनी चाहिए उतनी खुराक उनको मिलना असंभव है। ऐसे बच्चों के लिए अच्छे शूज देना, अच्छी खुराक के लिए उसको पैसे देना, ये सब काम हमने शुरू किया। और मैं खेल की बात बता रहा था, पिछले 7 साल से हम लोग पुणे यूनिवर्सिटी रीजन के मैक्सिमम प्राइज विनर्स है, हमारे पास सबसे ज्यादा मेडल्स आते हैं। और ये कारण इसका ये है कि हम लोग ये क्रीड़ा कोष के माध्यम से बच्चों को इतना प्यार देते, और हमारी अलमनाई आकर के बच्चों को सिखाने लग गई। और इसके साथ साथ हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके कारण हम लोगों को नैक में ऊपर का ग्रेड हरदम मिलता रहा। मैं तो ये समझता हूं कि मैं चेयरमैन के नाते, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो प्रधान सेवक हूं, वैसे मैं अपने कॉलेज का प्रधान सेवक हूं। और जो भी मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल, मेरे प्यून्स, मेरे बच्चे, जो भी कुछ उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, मैं समझने की कोशिश करता हूं और उनको उस प्रकार के सपोर्ट सिस्टम में खड़ी कर देता हूं। तो मेरा काम है सेवक का, और उनको क्या ये सब मैं देखते रहता हूँ। देखते देखते नैक में मैंने इतना अभ्यास कर लिया नैक का और एजुकेशन सिस्टम का, कि मेरा लेक्चर महाराष्ट्र के विधान भवन में संयुक्त सभागृह के सामने सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सारे एमएलएज को बैठाया गया और उनके सामने राइट टू एजुकेशन पे मेरा लेक्चर रखा गया। नैक के लिए मुझे कई कॉलेजेस बुलाने लग गए, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से। उसके बावजूद मुझे लोग प्यार करने लगे। अब ये कैसे संभव हुआ, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपसे और करना चाहूंगा। एक बहुत मजे की चीज आपको बताने लाया हूं। और एक चीज है, देखिए इस पे बहुत सारी लाइंस आपको दिखेगी। अब ये लाइंस आपको काउंट करनी है, तो चलो आप काउंटिंग शुरू कर दो इन सब लाइनों का। ये कितनी लाइनें हैं यहाँ पे जो दिख रही है, आपको इसका काउंटिंग करना है कि लाइंस कितनी है। और मैं मेरे मन में 5 गिन रहा हूं, तब तक आपको ये सब कैलकुलेट करना है। खत्म हो गया आपका टाइम। सर मिस हो रहा है, दिख नहीं रहा है क्लियर। आपको मुश्किल जा रहा है, मुझे पता है। अब यही चीज मैं आपको वापस दिखाता हूँ, लाइनें उतनी की उतनी हैं। अब आप गिनिए, मैं 5 कहूंगा, तब तक आपको ये गिनना है। 16। आप कहेंगे बड़ा आसान है, ये 4 के 4 सेट लगा रखे हैं, 16। ओके, यहाँ पर भी 16 ही लाइनें थी जी, और यहाँ पर भी 16 लाइनें, लेकिन ये लाइनें जो है वो काउंट करना बड़ा आसान था। इसका एकमात्र कारण था इसमें एक सुव्यवस्थितता थी। जब हम कोई चीज सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत सुंदर काम बनता है। अब मैं आपको मेरे कॉलेज के कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ। बड़ा पुराना कॉलेज है, हाईफाई नहीं है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास शायद नहीं है, हम बहुत छोटी जगह में काम करते हैं। लेकिन मेरे कॉलेज में 1961 से लेकर 1919 तक, पिछले 60 सालों में यदि कोई भी बच्चा आ जाता है तो उसका सारा रिकॉर्ड विद इन 30 सेकंड्स आई कैन गिव इट टू देम। ये मैंने यहाँ पर काम किया। मैं उसके कुछ एक स्लाइड्स आपको दिखाना चाहूंगा। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन एंड लेट अस सी। होस्ट आपको मेरे को स्क्रीन एनेबल करना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर मेरा एनेबल करना पड़ेगा। डॉक्टर संतोष, काइंडली एनेबल द स्क्रीन शेयरिंग। हाँ जी मैम, कर रहे हैं मैम। हाँ, तो जब तक वो होता है तब तक हो गया शायद। हो गया सर। मेरे लिए भी किया आपने? हाँ जी। नहीं, आपने मेरा करना चाहिए। हाँ जी, आपका ही कर रहे हैं सर, आपका कर रहे हैं अभी। स्क्रीन इनेबल कर। या तो आप मेरे को को होस्ट बना दो, मैं कर लूंगा बराबर। सर होस्ट बना रहे हैं आपको भी, होस्ट बना को होस्ट बना रहे हैं सर, को होस्ट बना रहे हैं सर, तभी बना रहे हैं सर, क्लियर होगा। बना रहे हैं सर। हाँ, ये हो सकता है कभी आगे होस्ट भी बनाना मुझे, ताकि मैं आऊं आपके कॉलेज में और जैन साहब के घर पे मिले, शाम का डिनर सीमा मैम के घर पे मिले, तो जरूर आऊंगा मैं। लेकिन आज के बिल्कुल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट प्रेशियस मोमेंट। लेट मी चेक। नहीं, अभी तक नहीं हुआ।
हम लोग को तो दिखने लगा है। नहीं, वो आपको उनका दिख रहा है, हाँ मेरा जी। दिखना चाहिए आपको। आप स्क्रीन शेयर ऑल कर दीजिए ना, बाकी तो कोई करने वाला है नहीं। हम्म। बहुत संक्षेप में दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक पेपर में आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक जापानीज सिस्टम है मैनेजमेंट की, जिसमें 5S नाम की चीज करवाई जाती है। अब ये 5S क्या है ये आपको मैं समझाऊंगा जब ये स्क्रीन शेयरिंग मेरा शुरू हो जाए। और ये 5S हम लोगों ने कॉलेज में करवाया। इसका कारण ये था कि जब जब मैंने कॉलेज का बजट बनाया, तब मैनेजमेंट का प्रतिनिधि के नाते मैंने सारे HODs को लेटर लिखा कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप मुझे बताइए, ताकि बजटिंग में आपके लिए खर्चे का कुछ प्रावधान हम लोग रख सके। उनकी जब पहली बार मुझे लिस्ट आई ना, तो किसी ने 4 अलमारियां मांगी, किसी ने 5 अलमारियां मांगी, किसी ने 10 अलमारियां मांगी कि बहुत सामान है साहब, सामान रखने को जगह नहीं हमारे पास, हमें अलमारियां दीजिए। तो कुल मिला के लगभग 100 अलमारियों की डिमांड हम लोगों के पास आई। तो मैंने सोचा कि बहुत जरूरी है जी अलमारी देना, तो इतना लोगों की तकलीफ है तो अलमारियां खरीदनी चाहिए। तो हमने 100 अलमारियां पहले साल खरीदी, सब डिपार्टमेंट्स को अलमारियां भेज दी गई। फिर अगली साल मैंने जब वापस, वाला उन्हें भेजा उस ग्रुप में, खोली जाए। कोई बात नहीं। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर, आपको हम होस्ट बना रहे हैं क्योंकि होस्ट का ही हमारे पास एक ही होस्ट का वो है, और इसके बाद आप फिर हमें बना देना। चलेगा चलेगा। हाँ जी सर, आपको होस्ट बना रहे हैं हम। बना दिया सर, आपको होस्ट बना दिया, आप कर सकते हैं। क्या बात है, आपने बहुत बड़ा ऑनर दे दिया है मुझे। बन गया हूँ आपका। तो अब तो आपको आना ही पड़ेगा हमारे कॉलेज। अब तो मुजफ्फरनगर की टिकट कटवाई लीजिएगा जब फ्लाइट शुरू होंगी। देखिएगा, ये सब बच्चों ने सिखाया मुझे, ये सब मेरे बच्चे आ जाते हैं कभी, अभी तो क्वारंटाइन थे ना, तो ये सारे ऑनलाइन चीजें जो है, मेरे कॉलेज के बच्चे मेरे व्हाट्सएप पे मुझे ट्यूटोरियल्स लेते थे मेरे, कि सर ये ऐसे करना, वो ऐसे। बच्चे बड़े टेक सेवी होते हैं, अपने से ज्यादा जानते हैं, तो ये जूम चलाना, ये सब चलाना, ये सब उन्होंने सिखा दिया कि होस्ट बनने पर क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कर दिया। अब मुझे पता नहीं, आपके यहाँ बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं, उनको मैं एडमिट भी कर लूंगा, आप देख लेना, क्योंकि उनको एडमिट नहीं करो तो अच्छा नहीं रहेगा। और जो लोग मोबाइल लेकर बैठे हैं ना, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि मोबाइल की स्क्रीन पे आप कुछ मत करना, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे हाथ घुमाते ही इस पे लाइनें आना चालू हो जाती है। ये एक जूम का बड़ा डिसएडवांटेज है, हमको जूम को लिखना पड़ेगा कि उनके इसमें सिस्टम में ये फ्लो है, ये फ्लो है। कि जैसे ही मोबाइल पर हाथ घुमाता है तो उस पे थोड़ा सा वो लाइनें आना चालू हो जाती है। तो हम लोगों ने ये 5S नाम की एक चीज की, और ये इवोल्यूशन, हम केवल उस 5S तक नहीं रुके, हम लोग तो आगे भी बढ़ते गए। और हम लोगों ने मैं बता रहा था कि अलमारियां खरीदी गई। जब दूसरी बार अगले साल मैंने जब ये किया कि भाई आपको क्या चाहिए इस बार, तो फिर एक बार अलमारियों की डिमांड आई। मैंने कहा पिछले साल तो 100 अलमारियां खरीद के दी, अब और अलमारियां लेना है। तो बोले हाँ साहब, जगह नहीं पुरती है। तो मैंने काम किया, मैं रात के समय, शाम के समय वहां गया और एक फोटोग्राफर अपने साथ लेके गया, और एक प्यून को रुका रखा था स्कूल में, और सारी चाबियां उसके पास रहती, उस प्यून को रुका रखा था। और मैंने बोला चलो चल सब डिपार्टमेंट्स में जाएंगे और एक एक डिपार्टमेंट में जाके देखेंगे कि है क्या चीज, कितनी चीजें बाहर है। और फिर हम लोग गए एक एक डिपार्टमेंट में और वहां की फोटोग्राफी की मैंने। अरे क्या बताऊं मैं आपको, ऐसा गजब का फोटोग्राफी सेशन मेरा हुआ उस दिन कि ऐसी ऐसी चीजें मैंने देखी, कभी सोची भी नहीं थी मैंने कि ये सब ऐसा पड़ा हुआ था, कहाँ क्या पड़ा हुआ था, कहाँ क्या पड़ा हुआ था। अद्भुत नजारा था सारा। मैंने सारे फोटो ले लिए और अगले ही दिन मैंने एक सहविचार सभा बुलाई। ये सहविचार सभा क्या होती है ये मैं आपको समझा देता हूं। सारे टीचर्स, सारी मैनेजमेंट और सारे नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सब इकट्ठा बैठते हैं। हमारे यहाँ ये एक बहुत खुला मामला हम लोगों ने रखा है कि मैनेजमेंट कोई अलग नहीं है हमारे यहाँ, दैट इज पार्ट ऑफ द टीम, एंड अनलेस इट इज पार्ट ऑफ द टीम वी रियली कैन नॉट डू मच। तो हम लोग पार्ट ऑफ द टीम है और हम लोग सब साथ में बैठते हैं।
और वो जो कार्यक्रम होता है वो हमारा संक्रांति के पहले दिन, संक्रांति के पहले दिन हम लोग उस कार्यक्रम को करते हैं। और वो कार्यक्रम जो रहता है उसमें मैं म्यूट कर रहा हूं सबको, कृपया सब लोग म्यूट रहना, क्योंकि बीच में कोई आवाज आ जाए तो गड़बड़ होती है। फिर जब आपको खोलना है तो खोल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको म्यूट कर रखा है। संक्रांति के पहले दिन इसलिए रखते हैं क्योंकि जो भी बोलना है दिल से बोलो, लेकिन मीठा बोलो। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम 50-100 लोग इकट्ठा आके काम करते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार के मत प्रवाह रह सकते हैं, लेकिन मन प्रवाह अलग अलग प्रकार के नहीं होने चाहिए। मत प्रवाह भले ही अलग हो, लेकिन मन प्रवाह एक दिशा में चलना चाहिए। संगच्छध्वम संवदध्वम, हम लोग एक साथ चले, हम लोग एक दिशा में चले। हमारा कॉलेज हमारी प्रायोरिटी है, हमारे स्टूडेंट्स ये हमारा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि वो आने वाले भारत की वो नींव है, वो नींव पक्की होनी चाहिए। परम वैभव स्वप्न सुंदर क्षितिज सा है दूर दुर्लभ, किंतु सनंदन सुमन की पाचुके माधुर्य सौरभ। राह कांटों से भरी है, कुशलता से लांघना है, लोक संस्कार करना यह परम गति साधना है। तो मेरा एजुकेशन मेरी साधना बन जानी चाहिए। मैं साधना करता हूं, मैं सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी साधना कर रहा हूं, क्योंकि मैं चित्र देखता हूं कि राष्ट्र की अट्टालिका हो विश्व में सर्वोच्च अनुपम, गोद में होते क्रियान्वित प्रगति के सोपान उत्तम, किंतु हर निर्माण के हित ईंट पक्की ढालना है। लोकमन संस्कार करना यह परम गति साधना है। ये साधना है, और इसलिए साधना तो एक दिशा में चलनी चाहिए। हम सब मिलकर एक दिशा में चल पड़े कि हमारा कॉलेज हमारे पुणे यूनिवर्सिटी रीजन का द बेस्ट कॉलेज होना चाहिए। ये हमारा सपना हम लोग संजो के चलने लगे थे, और इसके लिए सह विचार सभा हम लोगों की, सबका विचार सही दिशा में आगे बढ़े, इसलिए सह विचार सभा ऐसा उसका नाम दिया गया। और उसमें जो बोलना है बोलो, लेकिन मीठा बोलो, क्योंकि संक्रांति है और लोग उसमें आते और बोलते हैं। और फिर एंड में मैं कुछ बात रखता हूं कि अगले साल हम लोग क्या नया करेंगे, चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया उसमें, तो ये जापानीज 5S हम लोगों ने उसमें रखा था। बहुत स्लो क्यों हो रहा है मेरा लैपटॉप, पता नहीं, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा मेरा डुप्लीकेट में चला गया है। हाँ, अब आ गया। तो ये हुआ जापानीज 5S, उसमें कंसेप्ट हमने रखा था हमारी विचार सभा में, जिसमें सारे टीचिंग नॉन टीचिंग सब लोग हम साथ में बैठते, मैनेजमेंट भी साथ में आती, और हम सब लोग मिलकर उसमें चर्चा करते। तो उस चर्चा में मैंने 5S का रखा, क्या करने वाले हैं। ये 5S एक जापानीज सिस्टम था, जिसमें 5 जापानीज वर्ड जो एस से शुरू होते वो लिखे हुए थे। हमने उसको इंग्लिश एस में कन्वर्ट कर दिया। जो जापानीज सेरी था उसको हमने बना दिया, साइटन जो था उसको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बना दिया, सेइसो जो था उसको शाइन बना दिया, सेकिटसु जो था उसको स्टैंडर्डाइजेशन बना दिया, और शित्सु जो था उसको हमने सेल्फ डिसिप्लिन बना दिया। सुनियोजितता, सुव्यवस्था, स्वच्छता, प्रमाणबद्धता और स्वयं शिस्त, सेल्फ डिसिप्लिन। और हम लोगों ने एक कमेटी बना दी 3 लोगों की, जो कि प्राध्यापकों में से थी, और उन लोगों ने इसको इलॉबरेट हम कर करके सबके सामने रख दिया। थ्योरी का मतलब होता है सॉर्टिंग ऑफ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल थिंग्स एंड प्रॉपर स्टोरेज और रिमूवल ऑफ नॉन यूजफुल थिंग्स। फिर सॉर्टिंग में हमने 3 ग्रेड्स बनाए, लो यूसेज, एवरेज यूसेज, हाई यूसेज। उसकी फ्रीक्वेंसी फाइनल की, नेवर यूज्ड इन लास्ट ईयर, यूज्ड वंस और ट्वाइस ड्यूरिंग लास्ट ईयर, ये लो यूज के है। फिर यूज इन लास्ट 2 to 6 मंथ्स एवरेज यूज के है, और यूज डेली और वंस वीक हाई यूज के है। अब इनको हमने क्या किया, जो लो यूज के थे उनको एक आइदर डिस्कार्ड कर दिया या स्टोर इन डिसेंट प्लेस कर दिया। एवरेज यूज के थे उसको स्टोर इन अ सेंट्रल प्लेस कर दिया,
और जो हाई यूसेज के थे उनको स्टोर नियर द वर्क प्लेस कर दिया। मेरे हर डिपार्टमेंट में फाइलिंग वगैरह सब इसी पद्धति से करा गया, सारे इक्विपमेंट्स ऐसे किए गए, पेपर खास करके 3D प्रिंसिपल पेपर्स के लिए यूज किया गया। इतने बिन काम के पेपर संभाल के रखे थे हम लोगों ने। अरे 1961 का भी जर्नल मिल जाता हमारे यहाँ, बाबा आदम के जमाने की चीजें थी। एक तो ऐसा ट्रांजिस्टर मिला था जो सिर्फ मतलब मैंने बाहर निकाला तो मेरे अंदर से आवाज घबराया, मैं बोला अंदर है क्या, ये आवाज कैसी आ रही है। तो उसके अंदर से एक चूहा भाग के गया और वो चूहा अंदर आवाज कर रहा था, उसका घर था, उसका पूरा परिवार भी अंदर रहता था। और मैंने कोशिश की चला के देखे कि ये चलता है या नहीं चलता है। 1961 का एक ट्रांजिस्टर था, एक रेडियो था, इतना बड़ा साइज में, आधा कपाट तो उसी ने, वो आधी अलमारी तो उसी में यूज की। तो वो सारा हमने बाहर निकाला, पेपर्स का 3D प्रिंसिपल किया, डम, डेलीगेट और डू, फेंक दो, उस रूम के पास भेजो, या उसके ऊपर कुछ ना कुछ कृति करो, कुछ करो उस पेपर का। 3 चीजों में उसको बांटा गया और हमारे हर डिपार्टमेंट का फाइलिंग हमने बहुत ठीक से किया। आप यहाँ देख रहे होंगे जिस अलमारी को खोला गया है उस अलमारी के बाजू में उसकी जो दरवाजा है उस अंदर की साइड में आप देखेंगे कि लेबलिंग किया हुआ है कि यहाँ पे कौन सी फाइल है, कौन सी फाइल में क्या है, सब रेड पोस्टर पेपर पे लिखा हुआ है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? नहीं, You're not able to see my? नो सर, स्टार्टिंग से ही स्क्रीन शेयर नहीं हुई है आपकी अभी। Just a minute. अभी अब आई है सर, अब आई है आपकी स्क्रीन सर। पता नहीं क्या हो रहा है, द मोमेंट आई ओपन द स्क्रीन वो स्टक हो रहा है, स्लो हो जाता है। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। अब दिख रही? हाँ जी, हो रही है सर अब। हाँ, तो मैं कह रहा था सहविचार सभा, और सहविचार सभा में हमने 5S कंसेप्ट रखा। ये सहविचार सभा थी, ये 5S के सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। सॉर्टिंग, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, शाइन, क्लीनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, फिर स्टोरेज ऑफ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल थिंग, प्रॉपर स्टोरेज और रिमूवल ऑफ नॉन यूजफुल थिंग्स। फिर हम लोगों ने उसकी फ्रीक्वेंसी तय की, लो फ्रीक्वेंसी, एवरेज फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी, और उस कागज का क्या करना है ये तय किया, उस चीजों का क्या करना है ये तय किया। डंप, डेलीगेट एंड डू, ये 3D प्रिंसिपल पेपर्स के लिए यूज किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप देख रहे हैं फाइलिंग सारी जो की गई है, इसका अलमारी के अंदर की साइड में आप देख रहे हैं कि ये पोस्टर पेपर पे हम लोगों ने उस फाइल में क्या है ये सब लिख रखा है। बहुत पेपर्स निकाले, इतने पेपर्स निकाले अंदर से, और इतना सामान निकला है। मैंने अपनी फैक्ट्री से एक ट्रैक्टर और ट्रॉली भेजा था उस दिन, जो हमने दिन तय किया था, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल थे बहुत सारे कि ये चीज फेंकने का अधिकार हमको है या नहीं है, हम कैसे फेंक दें, ये पूरा ट्रांजिस्टर फेंके तो कैसे फेंके, किसको फेंके, हमारा जो डेड स्टॉक रजिस्टर है उसमें वो चीज कहाँ, उसको कैसे, उसमें से बहुत प्रॉब्लम थी उन लोगों को। तो हमने सारे के सॉल्यूशन निकाल के उनको दे दिए, और एचओडी जो थे उनको हमने अथॉरिटी दिया कि आपको ये कर सकते हैं, जो चीज दूसरे के काम आ सकती है उसको अलग निकालो, और जो चीज किसी काम की नहीं, जिसका भंगार ही करना है, जो स्क्रैप करना है, वो अलग निकालो। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने अपनी ट्रॉली जब भेजी तो मेरे 23 डिपार्टमेंट है, लगभग 22 ट्रॉली भरकर डंपिंग स्टेशन एक जो बनाया गया था उसमें कचरा निकाला गया अंदर से। सारे स्टूडेंट, सारे टीचर्स, सारे नॉन टीचिंग स्टाफ, सब लोग काम कर रहे थे, और हम लोगों ने तो कंपटीशन ही रखा था। ये देखिएगा हमारा स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम में कलर कोडिंग यूज किया गया है। यहाँ पर आप ऑरेंज देखेंगे, रेड देखेंगे, ग्रीन देखेंगे कलर्स। ये इसको कलर कोडिंग इसलिए किया गया कि फटाफट हम लोगों को कोई भी कागज चाहिए तो 30 सेकंड में हम लोगों को वो कागज मिल ही जाना चाहिए। तो स्टोरेज ऑफ थिंग्स आफ्टर
ये जो क्लास storage of things after classifying them, so they are easy to find. Things are kept at place designed for designated for them, and it saves the time usually lost in searching them. बहुत समय की बर्बादी, और जितना सामान यहाँ वहां गिरा हुआ था ना, सब ठीक हो गया। कई अलमारियां तो खाली हो गई, वो जो 100 अलमारियां लाई थी ना, वो ऑलमोस्ट खाली हो गई हमारी। इतना सामान बकवास सब निकाला अंदर से कि उसका कोई हिसाब नहीं। कलर कोड मैंने आपको जैसे समझाया कि लेबलिंग और कलर कोडिंग, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ये सारा किया गया वहां पर। और हम लोगों ने ये भी देखा कि हम लोग उसको बराबर उसको शाइन रखे। तो क्लीनिंग ऑफ द वर्क प्लेस टू मेक इट स्पॉटलेस। अब तो कोरोना के समय पे ये और भी जरूरी हो जाएगा हम लोगों के लिए कि हम लोगों को इतना क्लीनिंग रखना पड़ेगा और कोरोना से लड़ने के लिए। लेकिन हम लोग बिल्कुल उस दिन से तैयार है जब से हमने ये 5S किया था। तो इंक्रीजेस एंथुसियाज्म। हम जब साफ सुथरी जगह में बैठेंगे तो अपने आप काम करने का मन भी बनता है। डिक्रीजेस चांसेस ऑफ माइनर एक्सीडेंट, जो खास करके लेबोरेटरीज में होते हैं, और डिक्रीजेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, जो कि कोरोना के टाइम पे हम लोगों को बड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। ये सारा काम 5S ने हमारा कर दिया और इतना सुंदर काम हुआ हमारा। उसके अंदर काउज ऑफ डर्ट और मेस हमने ढूंढ के निकाले। फॉल ओडर होगा खास करके केमिस्ट्री की लैब में, रस्टिंग है, डस्ट है, डीकलरेशन है, स्क्रैचेस है, इरिटेटिंग नॉइजेस है, लीकेजेस है, गार्बेज है। इन सब चीजों के ऊपर हम लोगों ने काम किया। और हमारे यहाँ पैसा तो नहीं था, हम लोगों के पास गार्बेज का बॉक्स लाके नया रखने के लिए भी, डस्टबिन लाने का भी पैसा नहीं था हमारे पास। तो हम लोगों ने पुराने चीजों जो हम लोगों ने बेची ना, उसके 45,000 रुपए आए हम लोगों को। और उसमें से हम लोगों ने बहुत सस्ते में काम किया कि हमने क्लास में सबको बोला कि हमारे हर क्लास के अंदर डस्टबिन होना जरूरी है। तो बच्चों ने ही कहीं से ऑयल के खाली टीन मिलते हैं, वो ला करके अपने अपने क्लास में, क्योंकि क्लास टीचर के साथ हम लोगों ने क्लास का रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट भी है, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया हुआ था। तो ये सारे बच्चे काम कर रहे थे। और खाली ऑयल के जो कैन होते हैं उसके गार्बेज बॉक्स बनाए गए। हर क्लासरूम में ये सब काम चालू हो गया और हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से सारा अरेंजमेंट किया। आप देखेंगे जितने भी चार्ट्स लगे हुए हैं, एक साइज के चार्ट्स लगे। फाइलिंग सिस्टम एक स्टाइल का चालू हुआ। कहीं पर भी हम लोगों के जाएंगे आप तो एक नंबर की फाइल यदि होगी किसी भी डिपार्टमेंट की तो वो एडमिशन की ही होगी। सेकंड नंबर की फाइल होगी तो वो रिजल्ट की ही होगी। थर्ड नंबर की फाइल होगी तो वो स्टाफ प्रोफाइल की ही होगी। फोर्थ नंबर की होगी तो वो रिसर्च की ही होगी। इस प्रकार से हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट को जो फाइलिंग सिस्टम समझाया वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया और उसमें अपने आप आगे बढ़ते रहे लोग। और फिर उसके बाद में कृपया अपने म्यूट रखे ताकि मुझे बार बार ना करना पड़े। किसी की आवाज आती है तो एक जो चलता है वो टूट जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो हमने किया। डिसाइडिंग क्राइटेरिया, रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनलीनेस, इन्वॉल्व्स विजुअल कम्युनिकेशन, फाइंडिंग द फॉल्ट और रेक्टिफाइंग द फॉल्ट। इन सब चीजों पर काम करके हम लोगों ने ये भी काम कंप्लीट किया। और उसके बाद में आप जैसे ही म्यूट निकालते हैं आपका तो मुझे वापस आपको म्यूट करना पड़ता है। सो प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट पे रखें और कोई हाथ ना लगाए अपने स्क्रीन को, खास करके मोबाइल्स को, जो एंड्रॉइड मोबाइल्स है उनको हाथ लगाते ही कुछ गड़बड़ चालू हो जाती है। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि हर जगह जो हम लोगों ने आप फाइलिंग किए हुए कबर्ड्स भी देख रहे हैं और ऊपर के वॉल्स पर हम लोगों ने जो जो फोटोग्राफ्स कुछ लगाए होंगे या कुछ चार्ट्स लगाए होंगे उसका साइज भी हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ये सब स्टैंडर्ड साइज में ही चलेगा काम। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन हम लोगों को बहुत काम आया। और उसके बाद में सेल्फ डिसिप्लिन, फॉलोइंग द रूल्स स्ट्रिक्टली, रेगुलर असेसमेंट, रेगुलर ऑडिट, ये 5 जो एस है उसका रेगुलर ऑडिट हम लोग करने लग गए। उसमें से हम लोगों ने प्राइजेस भी निकाले और फिर हम लोगों ने बहुत सारा उसमें और भी सुधार हम लोग करते गए। कुछ एक विजुअल ग्लिम्पसेस आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये पहले का सीन था हमारे कॉलेज का। अभी आदमी जो बैठा हुआ आप देख रहे हैं, वो आदमी यदि पैर टेबल के अंदर डालना चाहे तो डाल ही नहीं सकता, इतना सामान उसके टेबल के नीचे इकट्ठा हो गया है। मुझे पता नहीं आदमी लिखता होगा तो कैसे लिखता होगा, मतलब इम्पॉसिबल है उसको टेबल के पास आके लिखना। अब ये फिर भी काम करता रहा तो उसकी इफिशिएंसी कम होती रही।
लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि कंप्यूटर के टेबल्स के नीचे किस प्रकार का सब कचरा पड़ा हुआ है, ये सारे बक्से, अब कुछ काम नहीं, लेकिन हमारा बक्सों से क्यों प्रेम रहता है मुझे पता नहीं। वो डंपिंग स्टेशन में ले जाके रखना चाहिए, जब सामान निकाल लिया तो बक्सा वहां रखने का कोई कारण नहीं, वारंटी गारंटी के पेपर हो तो उतने रख ले, या फिर उस पर कोई स्टिकर हो जिससे हमारी वारंटी बनी हुई हो तो उतना स्टिकर निकाल ले, बाकी पूरा बक्सा वहां रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हम लोग रखे जा रहे थे। ये देखिए, हमने टीचर्स के लिए जो कबर्ड्स दे रखे थे उसमें टीचर्स ने अपना सामान रखना एक्सपेक्टेड था, लेकिन दो चीजें हो गई थी, एक तो वो जो लॉक्स थे वो टूट चुके थे, उसके हैंडल्स टूट चुके थे, तो उसको लॉक करना पॉसिबल नहीं था, तो टीचर्स ने उसको यूज करना बंद कर दिया था। हमने बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया, सब लॉक लगा दिए और अंदर का सारा कचरा हम लोगों ने निकाला, क्योंकि ये कचरा ही हमारी मनस्थिति को बिगाड़ रहा था। परिस्थिति बदल जाए तो मनस्थिति ठीक हो जाती है, और मनस्थिति ठीक हो जाए ना तो फिर आत्मस्थिति भी ठीक हो जाती है, और आत्मस्थिति ठीक करने के लिए पहले मनस्थिति को ठीक करना पड़ेगा, और मनस्थिति ठीक करने के लिए पहले परिस्थिति को ठीक करना पड़ेगा। तो हमने पहले अपनी परिस्थिति जरा ठीक कर ली। ये सारा जो गंद थी अंदर गिरी हुई, ये सब फोटोग्राफ्स वो है जो पहले मैंने निकाले थे। उस सहविचार सभा में मैंने ये कहा कि साहब ये जो आप काम आप सब लोग कर रहे हैं, आपको मैं आपके ही कॉलेज का टूर करवाने वाला हूं, ऐसा मैंने बोला। जैसे ये वीना वर्ल्ड वाले या केसरी टूर वाले आपको टूर पे ले जाते हैं, तो मैं भी आपको टूर पे ले जाऊंगा, अपने ही कॉलेज की टूर। और ये सारे फोटो दिखाए, किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारे सहविचार सभा का एक रूल होता है, जो बोलना है मीठा बोलो, नाम मत लो किसी का, दोषारोपण मत करो किसी के ऊपर, कौन गलत हो गया ये मत बोलो, क्या गलत हो गया ये बोलो, कैसे सुधार सकते हैं उसका आगे उसके बारे में भी बोलो। सिर्फ इतना गलत हो गया बोल के मेरी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती, जो आदमी इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, ये बात कहेगा वो ही आगे बढ़ेगा। ऐसा जब हमने कहा तब लोगों ने जिम्मेदारी खुद के ऊपर ली, और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो गंदे चार्ट आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये जब हमने उसका परीक्षण किया तो ये सारे चार्ट्स बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए थे। आप देखिए वही चार्ट्स अब वहां लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं, कितने ढंग से सारे वो जो उसके चद्दर, उसको वो जो कवर होता है उसका वो चार्ट का, उसको कभी धोया ही नहीं था हम लोगों ने, इतना मैल निकला, इतनी गंदगी निकली, और उसको सबको ठीक कर दिया गया। आप देख रहे हैं ये पुराना फर्नीचर है नीचे, लेकिन पेपर प्रॉपरली लगाया गया, उसके ऊपर जो भी सामान है, ये हमारी बॉटनी की लैब थी, और बॉटनी की लैब में सारे सैंपल्स होते हैं, वो सब चीजें होती है, तो ये सब हम लोग करते रहे, और उसमें बहुत अच्छा सिस्टम हम लोगों ने डिजाइन कर लिया। अब ये सिस्टम हमने आगे कंटिन्यूड रखा है। ये देखिए कितनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया। अब ये आप नीचे के फोटो में देख रहे हैं, ब्लेड रखने की भी जगह बनाई गई, एवरीथिंग एट इट्स ओन प्लेस एंड देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग। ये दोनों रूल्स को हम लोगों ने फॉलो किया। और आप वापस चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारी कॉमर्स लैब थी, अब ये नहीं रही, लेकिन उस जमाने में थी ये, लेकिन उस समय ये सारे चार्ट्स का साइज भी हम लोगों ने बिल्कुल सही कर दिया था। ये देखिए हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इसमें भी आप देखेंगे कि कबर्ड्स के अंदर जो इमीडिएट लगने वाली चीजें है वो नीचे है, जो नहीं लगने वाली ऊपर रखी गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बन गया, और इसके कारण हर चीज हमको ध्यान से मिलती थी। एक तो टीचर्स हमारे ऐसे भी थे जिन्होंने अपना डिपार्टमेंट और अच्छा बना लिया, टीचर्स है बहुत अच्छी है, तो हम जिस जगह में बैठते वो जगह भी अच्छी हो, जहाँ 8 घंटे हम लोगों को बैठना है, वो लोगों ने उसको कलर भी कर लिया और कर्टन्स भी लगा लिए, बहुत सुंदर काम किया। ये हमारा डंपिंग स्टेशन, इस डंपिंग स्टेशन पर सारा कचरा इकट्ठा किया गया, और उसके बाद में हम लोगों को ए ग्रेड मिला, जब मैम हमारे यहाँ और सीमा मैम ने हम लोगों को ए ग्रेड उस जमाने में दिया था। उसके बाद हम लोगों ने और इसको आगे बढ़ाया, और हम 5S फॉर नैक करने लग गए। इसमें डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट यदि हमारा ठीक है तो लोगों को अच्छी ग्रेड पक्की मिलनी ही मिलनी है। जब आप लोगों के नैक पीयर टीम आएगी तो नैक पीयर टीम आपका एविडेंस चेक करेगी, एविडेंस आपको तुरंत बताते आना चाहिए, और ये बताने के लिए आपका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो नैक की A+ ग्रेड का हमारा सपना था, और जो 5S हम लोगों ने किया वो अगला 5S डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोगों ने किया। और फिर ये जब डॉक्यूमेंटेशन हमारा सब ठीक हुआ तो कागज मिलना और भी हम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। पता नहीं आपके लोग बाहर जाते हैं फिर अंदर आते हैं,
तो उसके कारण बार बार वो एंट्री में दिखते हैं। आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा, अगले वेबिनार से यदि आपके ही लोग आने वाले हैं तो उसमें एंट्री का रिस्ट्रिक्शन मत रखिए। हर बार आपको एंटर करने की जरूरत नहीं होती, उसका एक अलग ऑप्शन इसमें है। और एक्चुअली पासवर्ड की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अपने ही लोग जब मिलने हैं तो पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है। तो ये सब बार बार डिस्टर्बेंस नहीं आता है फिर उसमें। ये जो 5S फॉर NAAC हम लोगों ने किया, उसमें फर्स्ट एस था वो स्माइल था। सॉरी, ये 5S फॉर हम लोगों ने पेपर के लिए जब कर लिया, उसके अगले साल हम लोगों ने 5S फॉर एक्सलेंस किया। तो 5S जो था नया, ये हमारा अपना था, इसके लिए हमको किसी के मदद की जरूरत नहीं थी, कहां के रेफरेंस से नहीं लिया था, ये हमारे लोगों ने खुद बनाया। तो फर्स्ट एस हमारा था स्माइल। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, कि हम लोग जब कॉलेज में आते हैं ना, तो कॉलेज में जैसे आते हैं हमारे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रोफेसर हमारे यहाँ ऐसे थे कि जो इतने सीरियस मुंह लेकर आते थे अंदर, कि उनके पास देखो तो लगता था डर ही लग जाए किसी बच्चे को। और मेरे तो बहुत ग्रामीण बच्चे हैं, तो ग्रामीण बच्चों को डर लगे ऐसी उनकी सूरत। अब मैंने उनको हंसना सिखाया सबसे पहले, तो कि हंसने का महत्व क्या है, कि आओ तो हंसो यार। सबसे पहले वो जो ग्रामीण बच्चा हमारे पास आया है, उसकी तकलीफ बहुत है, कभी जाके घर में देखेंगे तो पता चलेगा आप लोगों को। मैं कईयों के घर पे जाता हूँ, बच्चे मुझे अपने घर बुलाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके घर में कोई सत्यनारायण की पूजा हो, छोटा मोटा कोई प्रोग्राम हो तो मैं जाऊं। तो मैं भी जाता हूं, तो उस घर से मुझे परिचय हो जाता है। और मैं देखा उसमें, जब मेरे बच्चों ने मुझे घर पे बुलाया तब मैं जाता रहा। लेकिन हमारे टीचर्स, उनको हमने सारे बर्थडे दे दिए, क्योंकि फॉर्म पे लिखे हुए रहते, या फिर उन्होंने खुद निकाल लिए, और हम लोग अपने सभी बच्चों को बर्थडे विशेष देना चालू कर दिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा बहुत खुश हो जाता है। बर्थडे यदि हम लोग उसको विश कर दे तो उसको बहुत मजा आता है। फिर हम लोगों ने उसको हमारे सारे नोटिस बोर्ड्स आप देखेंगे तो बड़े स्माइलिंग, कभी भी हमारा नोटिस बोर्ड टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता है। हमारे फर्नीचर सारा स्माइलिंग है, हमारे इंस्ट्रूमेंट सारे स्माइलिंग है, हमारा एनवायरनमेंट पूरा स्माइलिंग बन गया। सेकंड डे हमने लाया वो स्माइलिंग था, और काउंसलिंग द स्टूडेंट, नोटिसेस ऑन कॉलेज वेबसाइट, कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंटल मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने की। हर महीने डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है विद एजेंडा, और सब लोग कुछ ना कुछ उसमें चर्चा करते हैं। कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स हम सब लोगों ने चालू किया, और हमको पता चलने लग गया कि कौन से बच्चे तकलीफ में हैं। ऐसे ऐसे बच्चों की हेल्प हमने की है, और उन बच्चों ने ऐसी ऊंचाइयां पाई है कि क्या बताऊं मैं आपको। ये जो बच्ची जिसको मैं किताब देता आपको नजर आ रहा हूं ना, ये बच्ची इतने गरीब परिवार से है, घर पर दूध निकालती थी सुबह में 4 बजे उठकर, और फिर बस पकड़ती थी 6 बजे, और फिर मतलब अपने घर की 2 गायें, उनका दूध निकाल के पूरा साफ सफाई करके खुद का टिफिन बनाकर सुबह 6 बजे की बस पकड़ती थी, 7 बजे कॉलेज में पहुंचती थी, 5 बजे कॉलेज में रहती थी ये बच्ची, बहुत गरीब परिवार की। लेकिन फिजिक्स में शी टॉप्ड द यूनिवर्सिटी, पहली आई यूनिवर्सिटी में, और उसको इमीडिएट जॉब मिल गया। गजब का काम इस बच्ची ने किया। थर्ड जो एस था वो सिनर्जाइज एंड शेयर। हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट की चीजें दूसरों से शेयर करना शुरू किया। इंटर डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे हमारे, हेल्प टू कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन होगा, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ईमेल, शेयरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, शेयरिंग कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स, ये सारी चीजें हमने शुरू की। इसमें सिनर्जाइज एंड शेयर ये हम लोगों ने जब शुरू किया, तो शेयरिंग ऑफ स्टूडेंट्स भी चालू किया हमने। ये कैसे, तो वो डिपार्टमेंट को मार्क मिलते थे यदि उस डिपार्टमेंट से कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है, उस डिपार्टमेंट को मार्क मिलते थे यदि कोई बच्चा एनएसएस या एनसीसी में जाता है, उस डिपार्टमेंट को मार्क मिलते थे यदि कोई बच्चा इलोक्यूशन कंपटीशन में जाता है और प्राइज लेके आता है। तो बच्चों को अलग अलग चीजों के लिए शेयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हमारे सब डिपार्टमेंट्स में शुरू हुआ। केवल एक स्पोर्ट्स का टीचर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बच्चे आए और बच्चे खेले मैदान पर, ये हर टीचर की जिम्मेदारी है, हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। और अपने डिपार्टमेंट के बच्चे शेयर करना वहां, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये हम सब लोगों ने शुरू किया। शार्पनिंग द सॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना, पब्लिकेशंस करना, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हमारी एनरिच करना, रिफ्रेशर एंड ओरिएंटेशन कोर्सेस में जाना, और यूज ऑफ आईसीटी पैकेजेस एंड अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स एंड कंट्रीब्यूटिंग इन सिलेबस फ्रेमिंग, ये सब काम हमने जब चालू किया, तब हमारे यहाँ आज हम लोग 5 बीवोक के कोर्सेस रन कर रहे हैं, 2 अगले साल चालू हो जाएंगे, टोटल 7 बीवोक के कोर्सेस और 2 हम लोगों के मास्टर एमवोक के कोर्सेस।
इसका करिकुलम हम खुद डिजाइन करते और डिग्री पुणे यूनिवर्सिटी देती है, और सारे वोकेशनल कोर्सेज हम लोगों ने शुरू किए। हम लोग सिलेबस फ्रेमिंग करने लग गए। अगले साल तो हम लोग ऑटोनॉमस बन ही जाएंगे, तो पूरा करिकुलम ही हम लोग फ्रेम करेंगे। और स्मार्ट गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों की थी, जिसमें हम लोगों ने स्मार्ट गोल जो चालू किया हमारा, उसमें हर डिपार्टमेंट में अपना गोल निश्चित किया गया। जैसे कि हम लोगों ने कितने बच्चे आज हैं, कितने कल आएंगे, हमारा हर डिपार्टमेंट का अब गोल हो गया। ये गोल स्मार्ट होना चाहिए, इसका मतलब है स्पेसिफिक, SMART। ये स्मार्ट का लॉन्ग फॉर्म है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, कितने बच्चे आज है, कितने आएंगे, आज कितना रिजल्ट है, कल कितना रहेगा, आज कितना रिसर्च हुआ, कल कितना रहेगा। हर चीज में स्पेसिफिक, हर चीज में मेजरेबल, हर चीज में अचीवेबल, हर चीज में रियलिस्टिक, और हर गोल में टाइम बाउंडेड कि कितने दिन में ये काम करने वाला हूं। ये सब हम लोगों ने शुरू किया। आपको विश्वास नहीं होगा साहब जान करके कि हमारा कॉलेज आप देख रहे हैं ऊपर के फोटो में, 2007 का फोटो है ये। 2007 का जो ऊपर का फोटो है उसमें एक बैरन लैंड आपको दिख रही है, और 2015 तक हम लोगों ने 5000 पेड़ लगाकर उनको, ये सामने का जो ग्रीन एरिया दिखता है वो भी हमारा ही एरिया है। तो ये जो 2 एरिया है उतने ही ग्रीन है, बाकी वैसा ही बैरन रह गया। ये 5000 पेड़ हमने अपने एरिया में लगाए और उनको बड़ा किया, क्योंकि मेजरेबल, अचीवेबल टारगेट लेकर के हम चले, टाइम बाउंडेड टारगेट लेकर चले। हम लोगों को मैक्सिमम मार्क मिले जब हमने NAC को ये बताया कि हमने इस प्रकार का काम एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए लगाया है, कि हमने दो तो पॉन्ड्स बना लिए जिसमें वाटर कंजर्वेशन हो रहा है, और इतने पेड़ हम लोगों ने एक साथ लगा लिए। ये पल्लवी गायकवाड़, ये बच्ची बहुत प्यारी बच्ची है मेरी। ये बच्ची इसके घर में कुछ भी नहीं, इसकी माँ जो है ना, ये किसी के घर मेड का काम करती है। और मेरी ये बच्ची साहब, आपको मैं क्या बताऊं, ये बच्ची यूनिवर्सिटी में टॉप कर गई, और इस बच्ची को मैंने बुलाकर इसको मैंने एक बुक दी छत्रपति शिवाजी महाराज की, क्योंकि 3 साल हम लोग इस बच्ची के ऊपर ध्यान दे रहे थे, और BSc में इस बच्ची को जब गोल्ड मेडल आया तब हम लोग इतने खुश हो गए कि उसका कोई हिसाब नहीं। मेरा बर्थडे होता है, जैन साहब आपका भी बर्थडे होता होगा, तो आपके पास बहुत लोग बुके लेकर आते होंगे। मैंने मना कर दिया सबको कि प्लीज मत लाइए बुके, आपको लाने हैं तो बुक्स लाइए, नोटबुक्स लाइए। और मेरे बर्थडे को सिर्फ नोटबुक्स इकट्ठा करता हूं मैं, अब बुके बंद कर दिया लेना। और मेरे ये पीछे जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये वो बच्चे हैं जो अर्न एंड लर्न में आते। उन सब बच्चों को उस दिन मेरे पास जितने भी बुक्स, नोटबुक्स इकट्ठा होते हैं ना, वो उनको अब तो हर एक बच्चे को 4-4 नोटबुक्स मिल जाते हैं। इस साल 4000 नोटबुक्स इकट्ठा किए थे मैंने। तो मेरे सारे बच्चों, क्योंकि मेरा जुलाई में आता है बर्थडे और उसी टाइम कॉलेज चालू होता है, तो ये बच्चों के लिए बड़ा आसान हो गया कि बच्चों का खर्चा 200-250 रुपए का कम हो गया, और उनको ये बुक्स मिल गए। मेरे अलमनाई को मैंने एक बार बोला था कि मैडम मैं ये आपको बताना चाहूंगा, आपकी NAC ने हमें एक रिमार्क दिया था कि आवर लाइब्रेरी इज नॉट एडिक्वेट फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच वी हैव। ये आपकी NAC ने हम लोगों को एग्जिट मीटिंग में दिया हुआ सजेशन था। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल बढ़ने की कोई जगह नहीं थी लाइब्रेरी में, लेकिन हमारे पास पुरानी जो अलमारियां थी उसमें सिर्फ 5 वो थे, रैक्स थे, जिसमें बहुत कम बुक्स बैठते थे। तो हमने ये नए रैक्स लाए जिसमें 8 रैक्स है और 8 वो बैठ सकते हैं। लेकिन जब वो लाया हमने और उसमें बुक्स रखे, मेरे पास लगभग 1.25 लाख किताबें हैं लाइब्रेरी में, लेकिन फिर भी लाइब्रेरी खाली खाली सी लग रही थी। तो मैंने एक अपील की मेरे फेसबुक से कि आप ग्रंथ दान कीजिए, आप 1500 रुपए भेजेंगे तो आपके नाम से 5 किताबों का सेट, आपका नाम का स्टिकर लगाकर हम लाइब्रेरी को डोनेट करेंगे। और बच्चों ने भेजना शुरू किया। कोई बच्चा मेरा कश्मीर की सीमा पर है, कोई बच्चा मेरा लंदन में जॉब कर रहा है, कोई बच्चा अमेरिका में है, कोई बच्चा और कहीं है। बहुत बच्चों ने पैसे भेजे, लगभग 6 लाख रुपए आए, और 6 लाख रुपए में हम लोगों ने नई किताबें खरीदी, और नई किताबें खरीदकर हम लोगों ने उनके नाम के स्टिकर्स लगाए। उनको सबको बुलाया था, उसमें से जितने संभव है वो आए भी थे। आप देखेंगे सरस्वती माता की प्रतिमा रखी गई और उसके बाजू में उनके नाम के बुक्स, उनको स्टिकर्स दिए गए। उन्होंने अपने हाथ से स्टिकर्स सारे चिपकाए, दिस बुक इज डोनेटेड बाय दिस एंड दिस एक्स स्टूडेंट। अलमनाई ने ये काम किया, और लगभग 6 लाख रुपए की किताबें हम लोगों ने ग्रंथदान योजना में लाई, और हमारी लाइब्रेरी जो है वो वापस पहले जैसी बन गई। मैं आपको विद्याधन कलश योजना की जो बात कह रहा था, ये हमारे एक स्टूडेंट है जो पुणे में शिफ्ट हो गए और वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। उनको हमने जब बुलाया था
हमको पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उस समय उस विद्याधन कलश योजना, जिसको 2 लाख रुपए से मैंने स्वयं शुरू किया था, उसमें 22 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके थे। और जब ये बात इनको पता चली तो हमारे ये माजी विद्यार्थी है, इनका नाम अविनाश भोसले, उन्होंने बोला कि इस योजना की महत्ता मैं समझता हूं, क्योंकि मैं खुद अर्न एंड लर्न में सीखा हूं। तो इस विद्याधन कलश योजना को मैं 78 लाख रुपए, 78 lakh rupees he has donated in that speech, and next day he sent the transfer of funds, and that fund was taken to 1 crore rupees, and now it has gone to 1 crore 22 lakhs. Swabhiman Kosh is, we don't get enough amount of please stop your somebody has unmuted himself. And anyways, I am completing my lecture. हम लोगों ने किया है जिसमें हम लोग जो मांगेगा उसको काम हम लोग देते हैं, जो काम मांगेगा उसको सबको काम दिया जाएगा। इस प्रकार का स्कीम है। ये पेपर स्प्रेडिंग मैंने आपको बताया था, ये पेपर स्प्रेडिंग मशीन है। 1 लाख रुपए का मशीन आया था, लेकिन हम लोगों को लाखों रुपए में लाखों दिए। और अब जिसमें सद्विचार, सद्विवेक, सदाचार, सद्भाव और सच्चारित्र्य चीजें इसमें आती है। इस प्रकार से ये 5S हम लोगों ने बहुत बढ़िया बात चल रही है आज तक। क्वेश्चन से इस मामले में तो जरूर पूछिएगा, तो जवाब दे दूंगा। लेकिन अब मैं वापिस तोमर मैडम को ये सौंपता हूँ उनको। हाँ जी मैम, हाँ जी सर, बना दीजिए। डॉक्टर संतोष तोमर में सर, डॉक्टर संतोष तोमर। हाँ जी, हाँ जी सर, हो गया सर, हो गया। So I enjoyed talking to you, and if you have any question in mind, you can definitely ask me. You can write it in the chat box. I will be delighted to वंदना answer. मैम, आप पूछिए कोई इंक्वायरी, अगर कोई क्वेरीज अगर है तो आप पूछ सकते हैं वंदना मैम। हाँ, बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर, ये बहुत हमें इससे नॉलेज मिली। और आपने बहुत सारे तरीके जो हमें बताए, इनमें से काफी चीजें सीमा मैम हम लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी थी पहले से। अच्छा है ये रिवाइव हो गया। अब जब सेशन खुलेगा, ये सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो हम लोग फिर इस पे काम करेंगे, जो हमारा काम रह गया था अधूरा। तो बाकी सबसे मैं पूछना चाहती हूँ कि किसी के पास कोई और क्वेश्चन है सर से पूछने के लिए, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर सब थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू मैम। सबको आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। लॉकडाउन में है तब हम लोगों ने अपने यहाँ जो काम चालू किया है, हम लोग अपनी ई लाइब्रेरी को एनरिच कर रहे हैं। और हम लोगों ने हर प्रोफेसर को ये बोला है कि आपको दिस नंबर ऑफ ई लेक्चर्स यू शुड क्रिएट एंड send it to the e-library, so that when this lockdown opens, that time we'll be ready with all the lectures, and because students won't be able to immediately come to college, and in fact that will be a really risky part, because we have 120 students in one class. Even if we call 50% of the strength, remaining 50% students, they will have to given some or other kind of support. For that we are creating our lectures. We have conducted one training session to create good videos with contents, and now till yesterday around 1200 lectures were completed. सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी सर। मैडम। हाँ जी सर। एक काम करा, हमारे कुछ रास्ते बंद कर दिए जी। मालवनी सर, आपने हमारे कुछ रास्ते बंद कर दिए। इस चीज का रास्ता बंद कर दिया जी मैंने? झूठ बोलने के। सच बात बताऊं कि विद्या के प्रांगण में जब जाते हैं तो सद्विचारों के साथ, जो लास्ट 5S मैंने बताया ना, तो सद्विचारों के साथ हम लोग चलते तो बहुत मजा आता है। ये चीज मेरे साथ आएगी अंतिम दिन जब कयामत आती है ना,
उस दिन मेरे पीछे जो मेरे बच्चे आएंगे मेरे, वही मेरी संपत्ति है, वही सबसे बड़ा धन है। उससे बड़ा क्या धन हो सकता मैं ये कह रहा हूँ कर कि रहे हैं। हमें बहुत बहाने मिलते हैं कि हमें ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपने वो सब हमारे रास्ते बंद कर दिए, और मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कभी मिलने का मौका मिलेगा तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। जरूर जी, हम इंतजार करेंगे। सीमा मैम तो हमारी गाइड, हमारी फिलोसोफर है, वो हमको पढ़ाती रहती है, हमको मार्गदर्शन देती रहती है। मैं को तो इतना जेलस हो गया कि वो आप क्या कैसे आ गई, वो पता रहता मुझे कि जा रही है कहीं, तो मैं तो पहले उनको पकड़ के यहाँ ले आता। अगर वो कास्ट की अपने आ गई हमारे पास, सर वो हमारी कास्ट की थी ना, तो उन्हें हम पे रहम आ गया। ये मैडम का बड़प्पन है। जी हम तो ऑलरेडी बहुत छोटा सा कॉलेज चला रहे हैं। जी सब आपका कॉलेज बहुत बड़ा, बहुत कम समय में डेफिनेटली होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि जिस द काइंड ऑफ एलिजिबिलिटी शी हैज, कमाल का, गजब का नॉलेज है उनके पास, सारे नैक प्रोसेसेस का, इतने कॉलेजेस किए हैं। उनका अपना कॉलेज, वो जो मेरठ का कॉलेज था, वो कॉलेज नैक के बाद में जो 1 करोड़ रुपए का ग्रांट आता है, कॉलेज फॉर पोटेंशियल एक्सीलेंस, वो ग्रांट लेकर आने वाला पहले कुछ कॉलेजेस में वो कॉलेज था जब वो वहां थी। इट इज वेरी डिफिकल्ट, हम लोगों को भी अभी तक नहीं मिला है वो, लेकिन मैडम के कॉलेज को वो मिला। और शी नोज एवरीथिंग। ये आज मैंने जो कुछ बोला वो उनको पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया, ये उनका बड़प्पन है। तो जैन साहब जरूर मिलेंगे सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी। अब मैं अपनी प्राचार्य डॉक्टर सीमा जैन मैम से अनुरोध करूंगी कि वो इस सेशन के बारे में कुछ कहें। मैम अनम्यूट करना मैम होगा। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। मैम अनम्यूट करना होगा। म्यूट ही है। हाँ, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है मैम। अब आ रही है मैम आवाज। मैम दोबारा आप हो गए म्यूट, दोबारा आप म्यूट हो गए मैम। स्क्रीन एट ऑल। हाँ अब जी, अब अब ठीक है मैम। ओके। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर संजय मालपानी जी फॉर गिविंग हिज kind consent to be with us in this session and deliberating and exploring and enlightening us about the NAAC process and how the faculty members can enhance, can accelerate their performance in various ways, and how they roped in the students in beautiful way. And I am so impressed. I was so impressed when जब मैं इनके कॉलेज में गई तो I was so impressed. तो मुझे बहुत अच्छा लगा the way they created a kind of a bonhomie among the faculty and the students. बहुत अच्छा environment था। अब तो बहुत ही अच्छा हो गया होगा, और मेरी इच्छा है कि मैं अब दोबारा एक बार और जाऊं वहां पर। और मालपानी सर से भी कह रही हूँ कि अब हम आपको एक दिन अपने कॉलेज भी बुलाएंगे। कॉलेज कोई सा भी हो, चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो, वो बिग कॉलेज था, अब ये स्मॉल कॉलेज है, पर इवन आई फील कि यहाँ पर स्टाफ इज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग है, और जो भी मैं कहती हूँ दे डू इट टू देयर लेवल बेस्ट, बहुत अच्छे उससे करते हैं। वी वर नेवर इनटू द ई कंटेंट एंड ऑल। अब मालपानी सर आप देखेंगे कि अब हमने इतनी सारी वेबिनार्स भी की हैं, ई लेक्चर्स भी दे रहे हैं, जो जूम से सब लोग पढ़ा रहे हैं अपने अपने उसको, और व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। इवन अवर वेबसाइट इज ऑल्सो अपलोडेड विद ई लेक्चर्स एंड ऑल। तो बहुत कुछ हम लोग भी ये लोग कर रहे हैं मेरे निर्देशन में, और मैं आशा करती हूँ के साथ बात करते रहेंगे आगे हम, तो वी विल बी एबल टू ब्रिंग मोर लॉरल्स टू द कॉलेज। मैं राजेश जैन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं कॉलेज को, और जो हम मांगते हैं, और क्योंकि अब हम भी नैक, इस कॉलेज का भी मुझे नैक कराना है, तो सबसे पहले हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था, तो वी वांटेड टू कंप्लीट दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और उसके बाद फिर वी वांटेड टू स्टार्ट विद द नैक प्रोसेस। तो अब हम धीरे धीरे वो करेंगे, और बीच बीच में हम आप लोगों, मालपानी सर आपसे हम फिर से बात करते रहेंगे। और राजेश जैन जी कुछ और कहना चाहते हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ एक बार फिर से कि वो कुछ कहें। मैडम आज का मैटर आपने मुझे ये दिया था, क्या मैटर दिया था आपने, पहले मुझे ये बताओ। आपको मैटर मैंने ये दिया था कि हम क्वालिटी एनहांसमेंट पे ही बात करेंगे, और हमारे साथ मालपानी सर होंगे जो कि हमें बताएंगे। मैडम आप लोगों का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि हम तो बेसिकली बिजनेसमैन लोग हैं, कम ही पढ़े लिखे लोग हैं, इतने तो पढ़े नहीं लिखे नहीं। नहीं, आप ये हमारे डीयू एलुमनी हैं मैडम, डीयू से ग्रेजुएट हैं हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं।
मैडम एक क्वेश्चन, जब भी मैं मुझे अपनी देखता हूँ ना कॉलेज को, जो मुझे फील होता है, जी कल भी एक सवाल था, उसका जवाब मैंने जैसा भी आपको दिया। जी कभी कभार अपने टीचर्स, प्रोफेसर्स और बच्चों के बीच के जो संबंध है, तो 3 हिस्से हैं हमारे, एक मैनेजमेंट और आप, वो तो एक हुआ, एक हमारे प्रोफेसर लोग। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि हमें कुछ काम अपने बड़े सोच समझ के करना चाहिए। जैसे हमारे अंदर एक डिवोशन कम है, जैसे कोई काम नहीं हुआ, भले ही हम कितने ही बड़े हो गए, हम एकदम से झूठ बोल देते हैं, बहाना बना देते हैं। जब हम झूठ बोलेंगे और बहाना बनाएंगे, हम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हमसे गलती हो गई, या हम नहीं कर पाए, या मैं भूल गया। जब मैं खुद, महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं गुड़ उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन मैं उस दिन कहूंगा गुड़ खाने को छोड़ने को, कि जिस दिन मैं छोड़ दूंगा। तो मेरे जो प्रोफेसर और टीचरों के बीच का रिलेशन स्मूथ कैसे बनेगा, आपका टीचर्स का स्मूथ कैसे बनेगा, और आपका और मैनेजमेंट का स्मूथ कैसे बनेगा, जब हम जिस वक्त हम आपस में एक दूसरे के प्रति झूठ बोलना, बहाना बनाना, ये सब बंद कर देंगे, तब आपके और हमारे बीच में एक सच्चाई खड़ी होगी। मैनेजमेंट चाहता है कि आप कोई कंप्रोमाइज मत करें, ये काम होना है तो मैडम होना ही है। मैं अपने सारे एसोसिएट प्रोफेसर से कहूंगा कि आपको जो करना है वो करना ही है, आप उसमें बिल्कुल मत डरो, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमसे डिस्कस करो। यही आ रही मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आ रही है सर, आ रही है। बिल्कुल ठीक आ रही है सर। बहुत अच्छा असेसमेंट आपने किया कि भाई हम लोग को वी हैव टू बी ट्रू विद अवरसेल्व्स, हम लोग को वी शुड बी ट्रू टू अवरसेल्व्स, कि जब तक हम ऑनेस्ट नहीं होंगे, जब तक हम आगे बढ़ना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि झूठ बोल के या बहाने बना के हम लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर वास्तव में व्हेन वी लुक इनटू अवर कॉन्शियंस तो हमें लगता है कि ये हमने अच्छा नहीं किया। तो यदि हम अपनी कॉन्शियंस को सुने और अपने दायित्व को अच्छे से निभाते रहे, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते रहे अच्छे से, तो मुझे लगता है कि फिर हमारा देश, हम ही क्या हमारा देश भी बहुत आगे जाएगा। अब तो वी आर इन द हैंड्स ऑफ ए वेरी गुड गवर्नेंस। तो इसके साथ साथ ही हम भी चाहते हैं कि धीरे धीरे सबका माइंडसेट भी धीरे धीरे चेंज हो जाए, वो माइंडसेट जो कि बहुत ही प्रोएक्टिव हो, बहुत ही डिटर्मिन्ड हो, बहुत ही डिटर्मिनेशन हो, और बहुत ही कहना चाहिए कि कमिटेड हो, डेडिकेटेड हो। जैसे मैडम हम जब अपने टीचर, अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो उनके मन में एक डर होता है, वो अपने प्रोफेसर से कभी खुल के बात नहीं कर सकते। किसी के पीछे ये रीजन हो सकता है कम पैसे के घर से है, हमारे यहाँ कास्टिज्म भी बहुत बड़ा एक मैटर है। सबसे पहले हमारा वो डर खत्म होना चाहिए, हमारा डिवोशन खत्म नहीं होना चाहिए, हमारा आदर खत्म नहीं होना चाहिए। पर एक स्टूडेंट अपने प्रोफेसर से कोई भी बात पूछने के लिए सक्षम खत्म ही कर दिया। बिल्कुल सर। जैसे यूपी के बच्चों की एक प्रॉब्लम है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो वो जिंदगी भर अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। मेरे को ये सब आपके सेशन से समझ में आई कि हम कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगाएं, कि हम उनकी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। देखिए हमारे पास, मैं मालपानी सर से अभी बड़ा इम्प्रेस हुआ, उनके यहाँ भी हमारी तरह के गरीब बच्चे आ रहे हैं, और वो जितना उनके लिए कर रहे हैं। हाँ, मैं कहना चाहती हूँ ये जो इनका जो कॉलेज है बिल्कुल गांव में है, एक तरीके से गांव में है, एक तरीके से संगमनेर जो बताने तहसील भी नहीं है, तो वहां पर इतना अच्छा इन्होंने किया है। तो मैं मानती हूँ कि, और वहां इंग्लिश इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम देयर। मालपानी सर बताएंगे कि वहां पे भी रीजनल लैंग्वेज मराठी बोली जाती है, सब मराठी में ही सब कुछ करते हैं वहां। वो बताएं सर। अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको पहले। हम लोग तो इसमें विश्वास ही नहीं करते कि अंग्रेजी नहीं आई तो बच्चा आगे नहीं बढ़ता। बिना अंग्रेजी के हमारे सब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। उल्टा की उनकी रीजनल लैंग्वेज अच्छी बनाने के लिए हमने क्या किया, ये सबसे पहले देखना होगा, क्योंकि मेरे बच्चों को तो रीजनल लैंग्वेज से भी शुरुआत करनी पड़ती है हम लोगों को। और सॉफ्ट स्किल के प्रोग्राम्स हम लोग रन कर रहे हैं,
जिसमें बेसिक इंग्लिश हम लोगों को उनको बतानी पड़ती है, और इंग्लिश डिपार्टमेंट में उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने चॉकआउट किया है। जैन सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो दूरियां है ना, इसका कोई कारण नहीं होता वैसे, ये संवाद की कमी ये उसका मुख्य कारण होता है। और सर रिपीट कीजिए। शुरू में मुझे भी ऐसा ही फील था कि हम लोग ऐसे बिखरे बिखरे हैं, लेकिन हर कोई चाहता था कि एक हो जाए, एक टीम बन जाए। शुरुआत पहल हमने की और हमने वो सहविचार सभा शुरू की। तो सहविचार सभा में हम लोगों ने सबको बुलाया, सबको सुना। पहली 1 या 2 सहविचार सभा में कुछ कटु बातें हम लोगों को सुननी भी पड़ी, लेकिन वो तो आईना था, हमें दिखाया गया मैनेजमेंट को कि भाई ये सब चीजें हैं, इसमें ध्यान दो। और जब जैसे ही वो पहली 2 सभाएं हुई, अब 14वीं सहविचार सभा हमारी पिछले वर्ष हुई है। 12 सालों तक कोई मतलब उसके बाद में इतना वो हार्मनी बढ़ गया कि सहविचार सभा साल में एक बार होती है, उसका इंतजार कोई करता नहीं। उसके पहले ही हम लोगों के पास में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हम लोग उसके सॉल्यूशंस दे देते और मामला सीधा हो जाता है। सो ये जो विश्वास की एक माहौल जो बनाना है, वो विश्वास का माहौल, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन, दिस इज द ओनली वे टू क्रिएट एंड बिल्ड अवर टीम इन स्पिरिटेड वे। तो ये हम लोगों ने जब शुरू किया कि हम लोग बीच बीच में वहां जाकर के सब लोगों के साथ में हिल मिलकर, और बिल्कुल हम लोग उन्हीं की टीम से है ऐसा कहकर, तो बच्चों को भी मैं अपना लगने लग गया, टीचर्स, नॉन टीचिंग, कोई भी सब लोगों को ये फील आया। थोड़ा सा समय इसमें ज्यादा लगता है, ये निश्चित बात है। ये हम लोगों के पास उतना समय नहीं है, हम अपना व्यापार व्यवसाय देख रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा समय हम लोगों को निकालना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा हमारा समय हमारे इंस्टीट्यूट को बहुत ऊपर लेके गया, ये भी हमने अनुभव किया। और वैसे हर आदमी अच्छा ही होता है, कुछ 1% उसमें मतलब दैवी गुण संपदा ज्यादा होती है, लेकिन वो जैसे आसुरी गुण संपदा है वो थोड़ी मात्रा में होती है। अब वो आसुरी गुण संपदा जो है उसको दैवी गुण संपदा की तरफ ले जाना, क्योंकि दानव और देव इसके बीच में मानव है। अब वो मानव का दानव बनाना है या देव बनाना है, तो मैंने देखा कि ये तो मानव को दानव बनाने की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को मानव को देव बनाने की प्रक्रिया करनी चाहिए। तो उसके अंदर जो 10% दानव था वो कैसे निकला, तो वो दानव ऐसा निकला, मैं आपको मजे बताता हूँ। मेरे पास में एक बाल भवन चलाते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं उसमें। एक दिन मैंने उनको चित्र बनाने को बोला कि भैया तुम्हारे घर का चित्र बनाओ, तो बच्चों ने चित्र, मैंने रोका, मैंने बोला वो वाला चित्र मत बनाना, नहीं तो हमारे चित्र घर का बनाने को बोला तो बच्चे एक ही चित्र बनाते, एक झोपड़ी बनाते, और झोपड़ी के पीछे एक पेड़ रहता है और ऊपर के साइड में ऐसे ट्रायंगल वाले पहाड़ रहते हैं, और उसके 2 ट्रायंगल के बीच में से एक सूरज भी उगता है, और आज तक मैंने उसकी किरणें कभी नीचे आती नहीं देखी, वो सब ऊपर ही जाती। तो मैंने बोला कि ये वाला चित्र नहीं बनाना, घर के अंदर का चित्र बनाओ, जिसमें कौन है तुम्हारे घर में, वो क्या करते हैं, कौन सी चीजें हैं, ये सब उसमें दिखना चाहिए। अब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे थे, उन्होंने चित्र बनाया। जब चित्र लेकर के वो मैडम मेरे पास आई तो मैंने बोला कि ये तो सब कॉपी हो गया, सबने एक ही चित्र बनाया। क्या चित्र था? तो सब सोफे पे बैठे और इधर पिताजी बैठे, माँ बैठी और बीच में भैया बैठा, बहन बैठी, और चारों मिलके टीवी देख रहे हैं, बस दैट्स ऑल। यही सबके घर का चित्र। मैंने मैडम से पूछा, मैडम ये क्या हो गया, सबने कॉपी किया क्या? मैडम ने बोला नहीं जी, ये तो घर घर की कहानी है, यही सब चलता है। तो मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने बोला इस बच्चे को बुलाओ जरा, मुझे बात करनी है। उस बच्चे को बुला के मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारे चित्र में कुछ गलत हो गया? तो उस बच्चे ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला देखो ध्यान से, तुम्हारे चित्र में गलत है। तो बोला क्या गलत है? तो मैंने उससे बोला कि देखो तुमने अपने आप को तो कान निकाले हैं, तुम्हारी बहन को भी तुमने कान निकाले हैं, लेकिन तुम्हारे माता और पिता को तुमने कान नहीं निकाले, ऐसा क्यों किया? तो वो बोला कि उनको कान नहीं है, मेरा चित्र बिल्कुल ठीक है। मैं सबका कहा है, ये कान नहीं क्या बात कर रहा है? मैंने उस बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारे माता पिता क्या सुन नहीं पाते? मेरे मन में आया बहरे है या पता नहीं क्या है। तो उस बच्चे ने कहा नहीं नहीं जी, वो सुन पाते हैं लेकिन सुनते नहीं है। ये जो बात है ना, मुझे बहुत कुछ सिखा गई। जब तक हम सबको सुनेंगे नहीं तब तक उसके देवत्व का प्रवास ही शुरू नहीं होता। और इसलिए सबकी सुनना ये हम लोगों का पहला काम है, ऐसा मुझे लगता है। भले ही उसको हम सॉल्यूशन नहीं दे सके, फिर भी शेयरिंग जब वो करता है ना उसके दर्द को अपने साथ, तो निश्चित रूप से उसका आधा दर्द तो वहीं कम हो जाता है। तो नहीं पूरा दर्द कम पाए तो कम से कम आधा दर्द तो कम करे। और उसको यदि हम लोग कम्युनिकेट कर दे कि भाई ये चीज इसलिए नहीं हो पा रही है तेरे मन की बात, क्योंकि उसका ये कारण है, ये जब उसको हम समझा देते हैं तब वो उसके अंदर जो दानव जगने लग गया है वो सो जाता है और देवत्व फिर शुरू हो जाता है। तो
ये तरीका है। और प्रिंसिपल, एचओडीज, मैनेजमेंट, टीचर्स, स्टूडेंट्स, नॉन टीचिंग, ये सब लोग मिलकर एक दूसरे की सुनने के लिए थोड़ा सा समय निकाले, ये हो जाएगा ना तो बहुत मजा आ जाएगा। जी, ध्यान दें। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ संतोष से कि अब ये प्रोग्राम हमारा खत्म होने जा रहा है, तो वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आए और सबको थैंक यू बोले। थैंक यू वंदना मैम। इसी के साथ आज के इस सत्र के समापन की मैं घोषणा कर रही हूँ, और साथ के साथ अपने सभी अतिथियों का, जितने भी सम्मानित अतिथि हमारे साथ। अनम्यूट करो। हेलो। हाँ संतोष, आवाज नहीं आ रही है। यस, आ रही है मैम? अब आ रही है, अब बोलो, अब आ रही है, अब बोलो। थैंक यू। मैं इस सत्र के समापन की अब घोषणा करना चाह रही हूँ, और इसी के साथ मैं अपने जितने हमारे अतिथि जो हमारे बीच है और उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, और इसी के साथ इतने सारे सुझाव हमें दिए हैं कि हमें लग रहा है कि हमें बहुत मेहनत करनी है अपने कॉलेज में। अगर हमें नेट मूल्यांकन कराना है तो हमें बहुत बहुत मेहनत करनी है, और हमें लग रहा है कि हम उन सब चीजों को जो आपने अभी बताया है। सर, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि आपने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया है तो उसकी जो स्लाइड्स है वो हमें प्रोवाइड करा दे, ताकि हम उस पर काम कर सके, याद रख सके। ये उसे सेशन याद रख सके। ये सेशन हमने रिकॉर्ड किया है। हाँ आप मैम, रिकॉर्डेड है ये सारा। हाँ, जो रिकॉर्ड भी भी चीजें है हमें मैम। चाहिएंगी, हाँ जो भी चीजें चाहिएंगी तो वी हाँ विल डेफिनेटली आस्क मालपानी सर फॉर हाँ दैट। जी। और अब सबके व्यूज आ गए हैं, और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इनोवेटिव एंड एज वेल एज वेरी वेरी इंस्पायरिंग आल्सो। तो मैं राजेश जैन जी, हमारे अध्यक्ष जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो टाइम निकाल कर इस सेशन में आए हमारे पास, हमारे साथ। और अब वंस अगेन डॉक्टर संजय मालपानी जी, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर insightful, invigorating, inspiring lecture, and which filled air in us, and pumped us up, for or geared us up for the further improvement. So thank you all, thank you very very much. So now I sign off, and tomorrow at 11 we again meet. So thank you very very much. Thank you everyone. हाँ, सभी Thank you everyone. नमस्कार। फीडबैक फॉर्म जरूर सबमिट कर दे। फीडबैक फॉर्म और असेसमेंट फॉर्म जो है वो सब सबमिट कर दे अभी। ये आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। हाँ, तो वो आप सबको लोग मिल इसको जाएगा। फिल कर दे। और लास्ट में मैं संतोष का भी थैंक यू करती हूँ, जो हमारे IQAC कमेटी की कन्वीनर है, कि उनके इतने एफर्ट से ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। थैंक यू संतोष। थैंक यू मैम। नहीं, आप सबके सहयोग से हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you everybody, thank you. Thank you, sir.